Hello everyone. Again, Bhavna Agrawal here. So last, what we have discussed about the principles of management. Principles means general guidelines that we follow to behave in a particular situation and how to act in a particular situation, that is principles. Same as principles of management कि हम कैसे behave करें, कैसे behavior को human behavior को influence करें, ठीक है, और कैसे act करें for a particular situation. That is principles of management, and it is change according to the change in the environment. It cannot be fixed, it cannot be rigid, it can be flexible. It cannot be fixed like a scientific management, because scientific managements are fixed and rigid in nature and they do not change. ठीक. Next we have discussed about the principles of Fayol, and Fayol is the father of management, and his major contributions are giving functions of management, that is what, yes, planning, organizing, staffing, directing and controlling. 5 functions of management and the 14 principles of management that we have discussed. और वो क्या क्या थे? डिवीज़न ऑफ वर्क, वो क्या था? डिवाइड द वर्क अमंग एम्प्लॉयज़. और इस वर्क को डिवाइड करने से फ़ायदा क्या हो रहा था कि एवरी वन इज़ स्पेशलाइज्ड इन द वर्क. Okay, if a person or any employee will do the same task again and again and again and again, then definitely he will get specialized in the work. ठीक है. Next we have discussed about the next principle, that authority and responsibility. Authority means power to take decision and responsibility means obligation to complete the task in a given period. That is authority and responsibility. Authority and responsibility. Authority means power to take decision and responsibility means completion of work in a given period. That is authority and responsibility. और ना ही ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा अथॉरिटी ठीक है और ना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिसिप्लिन मीन्स of course following the general rules and guidelines which is set up by the organization, but also develop the commitment towards each other. एक दूसरे से जो भी आपने प्रॉमिस किए हैं एम्प्लॉयज़ ने अपने मैनेजर से, मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज़ से, दे हैव टू फुलफिल देयर commitments and promises. That is discipline. Next is unity of command means receive order from one boss. Unity of direction means go in one direction. Everyone must go in one direction. One plan means one head means one plan. Okay. Next is subordination of individual to interest to general interest. अपने इंटरेस्ट को, जो भी आपका अपना इंटरेस्ट है, अपना सेल्फ मोटिव है, उसे असाइड रख के जनरल इंटरेस्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में काम करना, दैट इज़ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, गिविंग अ फेयर रेम्यूनरेशन और सैलरी टू एन एम्प्लॉय. Okay, next is centralization and decentralization. Centralization means powers in few hands and decentralization, powers are divided among each and every level. Scalar chain means following the rule of authority, following the line of authority and responsibility, and there is a setup of line, that is gangplank. एक अथॉरिटी का और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बंदा सेम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बंदे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है विदाउट फॉलोइंग स्केलर चेन. ठीक. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मीन्स एवरीथिंग मस्ट बी केप्ट in a proper sequence and in a proper order. It does not mean giving command. Next is principle of equity, giving fair treatment of each and every employee. Remuneration means giving fair salary and principle of equity means giving fair treatment. Stability of tenure of personnel. एम्प्लॉय मस्ट नॉट फील इनसिक्योर इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर एक एम्प्लॉय अपने आप को इनसिक्योर फील करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, ही विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट हिज बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इनिशिएटिव मीन्स अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना कि वो इनिशिएट करें, अपने सजेशंस दें, अपने आइडियाज़ दें टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, एंड ऑल्सो रिवॉर्ड दैम विद गुड एंड बेस्ट सजेशन. Next and last is esprit de
कॉप्स. एस्प्रिट डी कॉप्स मीन्स टीम वर्क. रिप्लेस आई विथ वी. हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ मैं कर सकता हूँ या मैं करूँगी, इससे काम नहीं चलेगा. वी हैव टू यूज़ वी. हम कर सकते हैं, हम करेंगे. ठीक है, दैट इज एस्प्रिट डी कॉप्स. We have discussed about the case studies. I hope you all solve the case studies that I had given you. और अगर स्टिल आपको किसी भी केस स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर योर क्वेरी विद अस. नेक्स्ट इज F.W. टेलर प्रिंसिपल. टेलर्स प्रिंसिपल. सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री. ही बॉर्न इन 1856 in USA and he joined Medieval Steel Company in 1878 as mechanical engineer. His primary concern was efficiency of workers and optimum utilization of resources. ठीक, इनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे? इनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट्स and the industrial organization. He emphasized on industrial organization and that scientific methods and scientific techniques. इनका बेसिकली मीन क्या था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप करने का क्या मतलब था, क्यों साइंटिफिक मैनेजमेंट सही? इनका कहना ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम करवाना चाहते हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉय से क्या काम करवाना चाहते हैं या आप क्या चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉय वो काम को करके दे. यू मस्ट नो. और उस काम को करने के लिए क्या बेस्ट और चीपेस्ट वे हो सकता है. इसीलिए इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट बनाई. इन्होंने ओवर रूल नहीं किया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को. इन्होंने बस अपने कुछ और प्रिंसिपल्स डेवलप किए विच इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है, इन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए अपने. द फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हारमोनी नॉट डिस्कर्ज, cooperation not individualism, and development of workers to their greatest efficiency and prosperity. Science not rule of thumb. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मीन्स, सबसे पहले रूल ऑफ थंब क्या होता है? रूल ऑफ थंब का मीन्स होता है कि अभी तक हमने मैनेजमेंट में पढ़ा कि सारी चीज़ें क्रिएटिविटी से होनी चाहिए, पर्सनलाइज स्किल्स से होनी चाहिए. इन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ आपके सिर्फ एक्सपीरियंस या सिर्फ एक इंट्यूशन आपको आ रही है कि ये काम अच्छा हो सकता है और हम इस मेथड को अप्लाई कर दें या इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए. साइंस किसी भी रूल ऑफ थंब पे नहीं चलता, किसी भी इंट्यूशंस पे नहीं चलता. इंट्यूशन समझ रहे हैं? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं ये वे अडॉप्ट करूँगी तो ये काम अच्छा हो जाएगा. नो. अगर आपको लगता है कि किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, बेस्ट तरीके से करना चाहिए, यू हैव टू यूज़ साइंटिफिक मेथड्स एंड साइंटिफिक टेक्निक्स एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. जैसे कि हमने बात की थी, डिवीज़न ऑफ वर्क ओवरनाइट तैयार नहीं हो गया. उसके ऊपर एक रिसर्च हुई, एक एवरेज वर्कर को देखा गया, एक काम को बांटा गया और काम को बांटने के बाद देखा गया कि एवरेज वर्कर कितनी देर में कितना काम कर रहा है. दैट इज़, उसके बाद कितनी ऑब्जर्वेशंस और सारी चीज़ों को मिला जुला के हमने रिजल्ट निकाला कि काम को बांटना चाहिए. देयर मस्ट बी डिवीज़न ऑफ वर्क. ये भी यही कहते हैं कि साइंस कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि आपको इंट्यूशंस आ रही हैं, आपको एक्सपीरियंस है या सिर्फ आपकी स्किल्स के बेसिस पे हम डिसाइड कर लें कि दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू अ पर्टिकुलर टास्क. नो. आपको कोई भी अगर काम करना है तो उसका एक साइंटिफिक रीज़न होना चाहिए. ठीक है, दैट इज़ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. नेक्स्ट इज हारमोनी नॉट डिस्कर्ड. हारमोनी नॉट डिस्कर्ड मीन्स लड़ाई झगड़ा नहीं, मतलब मेंटल रिवॉल्यूशन नहीं. लाइक एम्प्लॉयज़ सोचे कि मेरा मैनेजर ठीक नहीं है और मैनेजर सोचे कि मेरे एम्प्लॉयज़ काम चोर हैं. ठीक है, एम्प्लॉयज़ सोचें कि हम ओवर बर्डन हैं, अंडर पेड हैं और हमारा मैनेजर हमसे बहुत काम लेता है, और मैनेजर सोचें कि मेरे एम्प्लॉयज़ से कोई काम करते ही नहीं है, बस इन्हें फालतू बिठा लो और पैसे दे दो. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए. मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक हेल्दी रिलेशन होना चाहिए. ठीक है, देयर मस्ट बी यूनिटी बिटवीन दैम, देयर मस्ट बी हारमोनी बिटवीन दैम. कौन? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़. दैट इज़ द प्रिंसिपल, हारमोनी नॉट डिस्कर्ड. सो हारमोनी नॉट डिस्कर्ड किसको एम्फेसाइज करता है? मेंटल रिवॉल्यूशन को, एटीट्यूड को.
attitude towards each other among employees and managers. Next is cooperation, not individualism. Cooperation not individualism means सिर्फ मैं नहीं होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. देयर मस्ट बी कॉपरेशन. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स का क्या काम होता है कि अगर वो कोई भी प्लान डिक्टेट कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि अल्टीमेटली काम कौन करेगा? एम्प्लॉयज़ ही करेंगे. ठीक है, ऑपरेशनल लेवल वर्क तो एम्प्लॉयज़ ही करेंगे. और अगर मैनेजर चाहते हैं कि काम बहुत अच्छे से हो तो उन्हें सारी चीज़ें रिमांड पे लेनी होती हैं. उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को बोलना पड़ता है कि भाई आप बताइए आपकी क्या सजेशंस हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं, आपके क्या आइडियाज़ हैं, आप इस चीज़ को और कैसे बेहतर बना सकते हैं. तो यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म नहीं है. यहाँ पे मैनेजर ये नहीं कह रहा कि मैं जैसे कह रहा हूँ आप काम को वैसे करिए. नहीं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज कर रहे हैं कि आप मुझे बताइए काम कैसे करना है. ठीक है, अपने आइडियाज़ दीजिए, अपने सजेशंस दीजिए कि हम चीपेस्ट वे से मिनिमम कॉस्ट में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ कैसे काम को कर सकते हैं एक साथ कॉपरेट होके. दैट इज़ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. ठीक, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी. सी, यहाँ पे क्या होता है कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? आपके वर्कर्स पे डिपेंड करती है. इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी मीन्स कि आपके वर्कर्स अगर ट्रेंड नहीं है, ठीक है, आपने उन्हें सिलेक्ट किया लेकिन उनकी नॉलेज अपडेट करवानी है या फिर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स बताने हैं और बहुत प्रॉपर वे में बताने हैं. सो यू मस्ट ट्रेन योर एम्प्लॉयज़. ठीक है, जैसे अगर पहले क्या हुआ करता था कि कंप्यूटर वर्क नहीं आता था एम्प्लॉयज़ को करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंजेस आए वैसे वैसे पेपर वर्क से कंप्यूटर वर्क आ गया. अब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दे ऑर्गेनाइजेशन से कि भाई आपको पेपर वर्क नहीं आता, आप यहाँ से जाइए, आपकी छुट्टी, और नए एम्प्लॉयज़ को हायर कर ले. क्या ऐसा ठीक है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी के लिए और ग्रोथ के लिए? नो, नॉट एट ऑल. यहाँ पे क्या होता है, आप अपने एम्प्लॉयज़ की नॉलेज को अपडेट करो, उन्हें ट्रेन करो दैट हाउ दे कैन डू द पर्टिकुलर टास्क एंड हाउ दे कैन यूज़ देयर एफिशिएंसी टू द ग्रेटेस्ट prosperity. ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी. ठीक है, कि एम्प्लॉयज़ को आप जो भी टास्क दे रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ करती है मैटर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को जब सिलेक्ट किया था तो किस बेसिस पे किया था. ठीक है, और उनके अपॉइंट होने के बाद, उनके सेलेक्ट होने के बाद आपने उन्हें एक्चुअल में क्या टास्क दिया करने के लिए. ठीक है, क्या आपने जो भी उन्हें टास्क दिया या जो भी उन्हें जॉब असाइन की वो उनकी स्किल्स और उनकी क्वालिफिकेशन और उनके इंटरेस्ट से मैच होती है या एक्चुअल में नहीं होती है. अगर एम्प्लॉयज़ की स्किल्स और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग टास्क नहीं होगा, जॉब नहीं होगी, दे विल डेफिनेटली नॉट परफॉर्म गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. दे वोंट. ओके, so you must develop your workers to their greatest efficiency and prosperity to give them tasks according to their qualification and skills. ठीक, next so these are the principles of management. The first, science not a rule of thumb, कि साइंस किसी भी इंट्यूशंस पे नहीं चलता. ठीक है, किसी भी एक्सपीरियंस या किसी भी हिट या किसी भी मिस मैथड्स पे नहीं चलता. उसके लिए एक प्रॉपर वे होना बहुत ज़रूरी है. हारमोनी नॉट डिस्कर्ड मीन्स मेंटल रिवॉल्यूशन. डेवलप कमिटमेंट टुवर्ड्स ईच अदर. कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. एक तरीके से आप ये मान लो कि ये हारमोनी नॉट डिस्कर्ड का ही एक्सटेंशन है. बस यहाँ पे क्या है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज कर रहे हैं ये बताने के लिए, ये पूछने के लिए कि हम काम को कैसे करें. उन्हें आगे कर रहे हैं, उन्हें मौका दे रहे हैं, और साथ ही साथ में उन्हें बेस्ट रिवॉर्ड के साथ अप्रिशिएट भी कर रहे हैं. ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी. मीन्स आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करिए और जिस बेसिस पे आपने उन्हें सेलेक्ट किया है उसी बेसिस पे, उसी स्किल्स पे, उसी क्वालिफिकेशन, उसी इंटरेस्ट के साथ उन्हें जॉब प्रोवाइड करिए. अगर उनकी जॉब उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगी, दे वोंट परफॉर्म गुड इन अ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक, दीज आर द प्रिंसिपल्स. नाउ
Taylor has given some techniques also for the scientific management. That is what? That is, first is functional foremanship. ये एक्सटेंशन है डिवीज़न ऑफ वर्क का. दिस टेक्निक इज़ द एक्सटेंशन ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क. कैसे? डिवीज़न ऑफ वर्क में हम क्या करते हैं, टास्क को बांट देते हैं. ठीक है, एम्प्लॉयज़ में टास्क को बांट देते हैं. यहाँ पे भी यही काम किया गया है. यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप टास्क को 2 डिपार्टमेंट्स में बांट दो, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक प्लानिंग डिपार्टमेंट. और ऐसा क्यों किया गया, टास्क को इस तरीके से प्रोडक्शन और प्लानिंग में क्यों बांटा गया? इन्होंने ये काम इसलिए किया, ये टास्क इसलिए बांटा ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बंदे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कंसंट्रेट कर सकें और प्लानिंग वाले प्लानिंग में. मीन्स दे वोंट गेट मेस अप विद द वर्क, और सब अपने अपने वर्क को प्रॉपर टाइम दे सकें, प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज कर सकें और रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज कर सकें. ठीक है, इन्होंने कहा कि आप 8 वर्कर्स 8 हेड्स या यूनियन हेड्स एम्प्लॉय करिए. ठीक है, और उन्हें प्लानिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दीजिए. प्लानिंग में 4 एम्प्लॉयज़, सुपरवाइजर असाइनमेंट, एंड प्रोडक्शन में भी 4 सुपरवाइजर्स. अब प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो सुपरवाइजर्स होंगे वो क्या, कौन कौन से होंगे? फर्स्ट इज रूट क्लर्क. रूट क्लर्क क्या करता है, क्या मैकेनिकल काम है, क्या मैनुअल जॉब है, ये डिसाइड करता है कि एम्प्लॉयज़ को एक्चुअल में करना क्या है, किसका मैकेनिकल काम है और किसका मैनुअल वर्क है. ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्सअप करता है. नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है, जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है. इंस्ट्रक्शन से ही पता चल रहा है, लाइक प्रोवाइड जनरल इंस्ट्रक्शंस थ्रू द वर्कर्स दैट हाउ दे विल परफॉर्म द जॉब और हाउ विल दे परफॉर्म अ वर्क इन अ स्पेसिफाइड मैनर. ठीक. नेक्स्ट इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क मीन्स किस टाइम काम शुरू होगा और किस टाइम काम ख़त्म होगा. ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम होता है. और साथ ही साथ में कॉस्ट शीट भी बनाना, लाइक कितना रॉ मटेरियल आया, कितने वेजेस पे हुए, ठीक है, कितना डायरेक्ट खर्चा हुआ, कितना इनडायरेक्ट खर्चा हुआ, ये सारी चीज़ें टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क अपने अंडर करता है. एंड नेक्स्ट इज डिसिप्लिनेरियन. डिसिप्लिनेरियन का क्या काम होता है कि सारा काम एक प्रॉपरली, एक सिस्टमेटिक, एक ऑर्डरली वे में चलता रहे. दैट इज़ डिसाइडेड बाय द डिसिप्लिनेरियन. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्लानिंग डिपार्टमेंट रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन. एंड द नेक्स्ट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन आते हैं? फर्स्ट इज गैंग बॉस. गैंग बॉस नाम से कुछ डरिए मत, क्योंकि यहाँ पे कोई गैंग उस टाइप का गैंग नहीं है. यहाँ पे गैंग बॉस का मीन्स है कि सारे मशीन्स, टूल्स या जितनी भी अदर रिसोर्सेज हैं जो प्रोडक्शन के लिए काम आने वाली हैं, उनको एक सही तरीके से रखना और अरेंज करना. मेनली इनका काम होता है अरेंज करना कि किसी भी वर्कर को कोई भी प्रॉब्लम ना आए. स्पीड बॉस लाइक टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क कि टाइमली काम को कंप्लीट करना. रिपेयर बॉस ये वो इंश्योर करता है कि कोई भी मशीन अगर वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो उसे प्रॉपरली रिपेयर करे, टाइमली रिपेयर करे. ठीक है, और सारे टूल्स एक वर्किंग कंडीशन में हों ताकि जब भी उनकी ज़रूरत पड़े वो एकदम यूज़ कर लिए जाएं. ठीक है. नेक्स्ट इज इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर मीन्स इंस्पेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके बाद इन्हीं लोगों का काम आता है क्वालिटी को चेक करना, क्वालिटी को इंस्पेक्ट करना कि जो भी हमने प्रोवाइड करा है मटेरियल उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है. सो दे इंस्पेक्ट द क्वालिटी ऑफ द product. That is these are the bosses which comes under production department. So in functional foremanship there are 2 departments, planning department and production department. Planning department कौन कौन से वर्कर्स, कौन कौन से बॉसेस आते हैं यहाँ पे? Yes, root clerk, instruction card clerk, time and cost clerk and disciplinarian. And under production department gang boss, speed boss, repair boss and yes, inspector. Next technique he developed, that is standardization and simplification of work. Standardization नाम से समझ में आ रहा है, मीन्स मेंटेन क्वालिटी. क्वालिटी के साथ साथ किस साइज़ का प्रोडक्ट होना चाहिए, किस टाइप का प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या उसका वेट होना चाहिए, एवरीथिंग कम्स अंडर स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है. और सिंप्लीफिकेशन मीन्स एलिमिनेट अननेसेसरी
एक्टिविटीज़, अगर कुछ गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं या अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उसे एलिमिनेट कर दो प्रोडक्शन में से या फिर मैनेजमेंट में से, ठीक है, या एम्प्लॉयज़ में से, लाइक कि एम्प्लॉयज़ को रेस्ट की ज़रूरत है और एम्प्लॉयज़ ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो उसे हटा दो, उस ज़्यादा टाइम को हटा दो, सिंप्लीफाई कर दो। और ऐसा क्यों करा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी आए, दैट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन to improve the standardization means to maintain the quality of the goods and simplification means to maintain the quality of goods, okay, sorry, improve the quality of goods and also the cost purpose। अगर आप अननेसेसरी टास्क को नहीं हटाएंगे, एक्टिविटीज़ को नहीं हटाएंगे तो कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, और अगर कॉस्ट प्रोडक्ट की बढ़ गई तो मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी में क्या होता है? इस स्टडी में बोला गया है कि कोई भी एवरेज एम्प्लॉय या कोई भी बंदा बहुत लंबे टाइम तक काम को नहीं कर सकता। दे मस्ट नीड इंटरवल्स, रेस्ट इंटरवल्स। रेस्ट इंटरवल्स क्या उनकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्या उनकी ड्यूरेशन होनी चाहिए, कितने रेस्ट इंटरवल्स होने चाहिए। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, 5-5.5 घंटे आप स्कूल में रहते हैं, बीच में आपका क्या होता है? रिसेस। दैट इज़ कि आप बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाई नहीं कर सकते, इसीलिए आपको रेस्ट इंटरवल्स दिए जाते हैं। लाइक और अगर एग्जांपल एलोबरेट करूं तो टीचर्स हर एक टीचर को 8 लेसन्स प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें 1 या 2 लेसन फ्री मिलता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे 8 लेसन्स पूरे 5-5.5 घंटे एक साथ नहीं पढ़ा सकते। दे नीड रेस्ट इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे ये स्टडी इसीलिए ही डेवलप की गई, ये टेक्निक इसीलिए ही डेवलप की गई कि आप अपने एम्प्लॉय से ज़्यादा काम मत करवाइए, क्योंकि एम्प्लॉय एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट हो जाएगा, थक जाएगा, और थक जाएगा तो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। इसलिए आपने देखा होगा फैक्ट्रीज़ में क्या होती हैं? शिफ्ट्स होती हैं कि मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है या मेरी मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है या मेरी इवनिंग शिफ्ट चल रही है। मेनली उनकी 3 शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे वर्कर अगर मॉर्निंग शिफ्ट कर रहे तो वो इवनिंग शिफ्ट का रेस्ट लेगा बिकॉज ही कैन नॉट परफॉर्म होल डे, और उसके बाद इवनिंग शिफ्ट के बाद रेस्ट लेने के बाद वो नेक्स्ट नाइट शिफ्ट के लिए रेडी रहेगा काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो रिचार्ज हो जाएगा, वो रिफ्रेशमेंट लेगा। साथ ही साथ में जब वो फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहा है उसमें भी बीच में उसे कुछ रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है, लाइक टी, बिस्किट्स। तो यहाँ पे क्या है? ये उसके रेस्ट इंटरवल्स, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके नंबर ऑफ इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल्स, दैट इज फैटिग स्टडी टू प्रोवाइड रेस्ट टू योर एम्प्लॉयज़, ठीक है। नेक्स्ट इज मैथड स्टडी। मैथड स्टडी क्यों मेनली बनाई गई है? ताकि प्रोडक्शन की कॉस्ट मिनिमम रहे और रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा यूज़ हो। मैथड मीन्स method, which method we have to adopt to do a particular task or to do a production process। जैसे 2 टाइप के मेथड्स होते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, ठीक है। तो इनमें से कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करना चाहते हैं? दैट इज़ व्हाट, यस, मैथड स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मीन्स standard time required to perform a job or standard time decided to target the workers, ठीक है, and determining the number of workers workers required to perform a job and the categorizing the workers to into efficient and inefficient workers। यहाँ पे क्या होता है? टाइम स्टडी में कब काम करना शुरू करना है और कितने टाइम में काम को कंप्लीट करना है। मैंने अभी क्या बात करी थी? फैटिग स्टडी की बात की थी। फैटिग स्टडी में मैं अपने वर्कर्स के रेस्ट की बात कर रही थी। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि मेरे वर्कर्स कितने दिन में या कितने घंटों में ये टास्क कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज़ टाइम स्टडी। कितने वर्कर्स मिलके ये काम को करेंगे और कितने घंटों में करेंगे, दैट इज़ टाइम स्टडी, ओके।
नेक्स्ट इज, और हाँ इसमें क्या होता है, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को कैटेगराइज करा जाता है, क्योंकि एफिशिएंट वर्कर तो ठीक है वो टाइमली काम को कर लेगा, लेकिन इनएफिशिएंट वर्कर वो काम को नहीं ढंग से कर पाएगा। तो इनएफिशिएंट वर्कर को अलग कैटेगराइज करा जाता है और एफिशिएंट को अलग कैटेगराइज करा जाता है। एफिशिएंट वर्कर्स को अलग टास्क दिया जाता है और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग टास्क दिया जाता है, सो दे कैन परफॉर्म देयर वर्क इन अ गिवन टाइम पीरियड। Next is motion study. Motion study means eliminate unnecessary tasks or unnecessary activities. Like जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे पास कॉल आया, मैं कॉल रिसीव करने बाहर चली गई, ठीक है, मुझे प्यास लग गई, मैंने पानी पी लिया, या फिर कोई आ गया, मैंने उससे बातें कर ली। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं जो काम कर रही हूँ उसमें आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे क्या है, अननेसेसरी टास्क है, मेरे इमोशंस को रिकॉर्ड करा जा रहा है कि मैं अगर 2 घंटे या 3 घंटे या आधा घंटा पढ़ाती हूँ तो उसके बीच में मैं कितने रेस्ट ले लेती हूँ या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करती हूँ जिसकी वजह से मेरा काम रुक जाता है। दैट इज़ मोशन स्टडी, टू रिकॉर्ड माई मोशंस, कि मैं अगर फ़ोन पे बात कर रही हूँ तो वो फ़ोन मुझे अभी अवॉइड करना है, या कोई आ रहा है और मैं उससे बात कर रही हूँ तो मुझे वो भी अवॉइड करना है। तो आपके अननेसेसरी मोशंस को काम से हटाना, दैट इज़ मोशन स्टडी, टू डू और टू परफॉर्मिंग द जॉब, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम मीन्स, अभी मैंने टाइम स्टडी में क्या किया था, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को कैटेगराइज कर दिया था। डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम में उनके वेजेस को कैटेगराइज कर दिया जाता है। इनएफिशिएंट वर्कर्स को थोड़ी कम वेजेस दी जाती है और एफिशिएंट वर्कर्स को अच्छी वेजेस दी जाती है। जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं उसके अकॉर्डिंग वेजेस दी जाती है। उनकी डेली वेजेस भी होती है, वीकली भी होती है, मंथली भी होती है, ठीक है। और क्या होता है कि जब आप एफिशिएंट वर्कर्स को अच्छी वेजेस प्रोवाइड करते हैं तो इनएफिशिएंट वर्कर्स अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं कि अगर हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमें भी अच्छी वेजेस मिलेगी, ठीक है। सो दैट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। नेक्स्ट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन मीन्स लाइक दैट वी हैव डिस्कस्ड, कमिटमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, डेवलप कमिटमेंट्स टुवर्ड्स ईच अदर और चेंज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ईच अदर। टुवर्ड्स ईच अदर मीन्स एम्प्लॉयज़ ये ना सोचे कि मेरा मैनेजर मुझे ज़्यादा काम देता है या मुझसे ज़्यादा काम लेता है, और मैनेजर ये ना सोचे कि मेरे एम्प्लॉयज़ कामचोर हैं, काम नहीं करना चाहते, सिर्फ उनसे खाली बिठवा के पैसे ले लो, ठीक है। दैट इज़ व्हाट, मेंटल रिवॉल्यूशन, ठीक है, करेक्ट है। सो दीज आर द टेक्निक्स विच इज़ डेवलप्ड बाय साइंटिफिक मैनेजर F.W. टेलर, और इसीलिए ही इन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर बोला जाता है। लाइक फेयोल को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फादर बोला जाता है और इन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द केस स्टडी ऑन योर स्क्रीन। ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशंस it is determined that one worker can make one cardboard in 20 minutes. एक वर्कर एक कार्डबोर्ड को 20 मिनट्स में बना लेता है। सो इन 1 hour he will make 3 boxes. तो 1 घंटे में वो 3 boxes बना लेगा। Assuming that a worker has to put in 8 hours of work in a shift and deducting 1 hour for rest and lunch. अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर 1 घंटे में वो 3 बॉक्सेस बना लेगा तो आप एज्यूम करिए वर्कर हैज़ टू पुट इन 8 hours फॉर वर्क। वो अपने 8 घंटे दे रहा है काम को करने के लिए, जिसमें से वो अपना 1 घंटा रेस्ट और लंच के लिए निकाल देता है। इट इज़ डिटरमाइंड दैट इन 7 hours अ वर्कर मेक 21 बॉक्सेस एट 3 boxes पर आवर, ठीक है। 7 घंटे में वो 21 बॉक्स बना लेता है, जिसमें से वो 3 बॉक्स 1 घंटे में बनाते हैं। नाउ दिस इज़ द स्टैंडर्ड टास्क वर्कर्स हैव टू डू। ये अब उनका स्टैंडर्ड टास्क हो गया दैट वर्कर्स हैज़ टू डू, एवरी वर्कर हैज़ टू डू, कि 1 घंटे में 3 बॉक्सेस और 7 घंटे में 21 बॉक्सेस, ठीक है। वेजेस आर डिसाइडेड अकॉर्डिंगली, और उनकी वेजेस भी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। द बेस ऑफ एवर टेक्निक इज़ वन ऑफ द टेक्निक ऑफ F.W. टेलर।
अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो टेक्निक है वो FW टेलर की टेक्निक में से एक है, बताइए वो क्या है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो मैम बहुत सारी टेक्निक्स लग रही हैं उसकी, जैसे यहाँ पे रेस्ट आ रहा है तो रेस्ट इंटरवल्स भी लग रहे हैं, और क्या क्या लग रहा है, टाइम स्टडी भी लग रहा होगा, आई होप सो। लेकिन यहाँ पे आपको पता है क्या है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कैसे है, क्योंकि उनकी वेजेस उनके काम के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रही है, ठीक है। अगर वर्कर 1 घंटे में 3 और 7 घंटे में 21 बॉक्स बना लेगा तो उसको उसके अकॉर्डिंग वेजेस मिलेगी, और अगर नहीं करेगा तो उसको उसके अकॉर्डिंग वेजेस मिलेगी। लिखा है ना, वेजेस आर प्रोवाइडेड अकॉर्डिंगली। सो हियर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। यहाँ पे रेस्ट इंटरवल्स की इतनी बात नहीं बोली गई है, यहाँ पे बस इतना बोला है कि उसने अपने 8 घंटे में से 1 घंटा रेस्ट और लंच के लिए निकाल दिया है, तो फैटिग स्टडी नहीं हो सकती। ओके, दिस इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। नेक्स्ट इज the next is production manager of Beta Limited took special care of the interest and ability of his subordinates while disturbing work among them. He was of the firm opinion that a worker should be given one work again and again so that he may become expert in it. समझ में आ रहा है वो क्या कह रहे हैं। प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ बेटा लिमिटेड टुक स्पेशल केयर ऑफ द इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। जो ये प्रोडक्शन मैनेजर हैं ये अपने एम्प्लॉयज़ में क्या क्या उन्हें इंटरेस्ट है, क्या उनकी एबिलिटीज़ है, इस पर स्पेसिफिकली फोकस करते हैं, ठीक है। वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क अमंग दैम, जब वो उनमें काम को बांटते हैं। ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट the worker should be given one work again and again so that he may become expert in it। जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एक एवरेज वर्कर काम को बार बार करेगा, लाइक अगर मैं आपको बार बार एक ही चीज़ पढ़ाती रहूँगी तो डेफिनेटली आई विल गेट एक्सपर्ट। वैसे आई एम एक्सपर्ट, बट यहाँ पे अगर कोई भी आप भी अगर एक काम को कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको अभी सब कुछ नया नया लग रहा है, लेकिन जब आप इसे पढ़ना शुरू कर देंगे, बार बार पढ़ेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट नो, डेफिनेटली यू विल बी नो दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल कंसेप्ट, ठीक है। सो वो एक काम को कर रहे हैं तो उस काम को करने के लिए एक्सपर्ट हो चुके हैं। वन डे ही टुक राउंड ऑफ हिज डिपार्टमेंट एंड नोटिस दैट द वर्कर्स वर नॉट डूइंग देयर जॉब क्विकली। जब वो एक दिन राउंड पे थे तो उन्होंने देखा कि उनके वर्कर्स काम को क्विकली नहीं कर रहे हैं। On inquiry, जब उन्होंने इंक्वायरी की, he learned that the workers worked non-stop, which main cause of their slow speed। उन्होंने कहा कि वर्कर्स नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग एनी रेस्ट, दैट्स वाई दे आर गेटिंग एग्जॉस्ट, ठीक है, दैट्स वाई दे आर गेटिंग स्लो स्पीड। सो ही इमीडिएटली इशूड एन ऑर्डर दैट ड्यूरिंग their working hours the worker will have an intervals to take rest. Now state the principle of management followed here. Principle of management, we are not talking about scientific principle, we are talking about principles। उन 14 principles में से यहाँ पे कौन सा principle है? Exactly, division of work। The next part is which technique of scientific management is indicated in above para। और यहाँ पे कौन सी scientific activity है, I mean technique है? Very good, fatigue study, because here we are talking about rest intervals। The workers are getting exhausted while performing the job because they are doing non-stop work। Very nice। Next is according to Taylor, even a small production activity like loading picks of iron into box cars can be scientifically planned and managed। Which principle of he is emphasized here? वो कह रहे हैं कि even a small production activity, एक छोटी से छोटी production activity can like loading picks of iron into box cars can be scientifically planned and managed। साइंटिफिकली प्लान और मैनेज हो सकती है। यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल है? एग्जैक्टली यस, फंक्शनल फोरमैनशिप। नेक्स्ट इज द ट्रू इंटेंशंस of management and workers are one and the same
and the prosperity of one cannot exist without the prosperity of the other. Which principle of Taylor is being talked about? Which principle of which principle of here we are talking, they are talking about? इन्हें पता है कि true intention of a management and workers are one and the same, and the prosperity of one cannot be exist without the prosperity of other. यहाँ पे पता है कि एम्प्लॉयज़ की वैल्यू मैनेजर के बिना नहीं है, मैनेजर की वैल्यू एम्प्लॉयज़ के बिना नहीं है. सो विच प्रिंसिपल इज हाईलाइटेड हियर? डेफिनेटली यस, harmony not discord means not mental revolution. So thank you everyone, thank you so much. इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश. कोई भी क्वेरी हो, कोई भी केस स्टडी हो, कुछ भी पूछना हो, you can mail us, you can directly call us. We are here to resolve your problem. Thank you. Bye bye. Stay home, stay safe.